Hello my dear students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which unit is going on? Unit 3. And what is the name of this unit? Smile, right? And this poem we have already learned in the last video, and related to this some words also we have learned in the notebook, right? हमने notebook में भी लिखा था ना. So which word is this? Smile. This is white. This is wrinkles. Secret. Hiding place. It is wonderful. It is makes. So these words we have written in notebook, right? And in the next page, see these exercises, right? So reading was also completed, that we have done, and reading is fun. We have written question answers also in notebook, and here one joke was there, that is also done. And today we are going to do page number 41, right? Page number 41 in your English textbook. So open your English textbook, page number 41, unit 3, and the name is Smile, and you have to read what is written here. Say aloud means you have to speak loudly, but इतना भी loudly नहीं कि आजू बाजू वाले को भी सुनाई दे, right? तो आपको क्या करना है? TRUNK. See, TR means sound together is tr, and UNK unk. It is, we can say, trunk. Say again, TRUNK, trunk. This is S means which sound? S. And UNK, unk. It is sunk. First of all, S sound and UNK together, it is called unk. Sunk. This is J, unk. It is junk. So trunk, sunk, and junk. So while reading the spelling, we can understand these words has same sound, right? ये जो 3 words है वो हमने अभी बोले. So we can see this sounds is same. उसका जो sound है वो क्या है? Same है. Trunk, sunk, junk. जो ये last word same है ना, इसलिए इसका sound भी same है. So these words are called rhyming words, right? इस words को क्या बोलते हैं? Rhyming words. See in the next column, this is s, ink. It is sink. Sound of S is s, ink. Sink. It is th, ink. Think. Because TH together we can speak th. So th, ink. Think. It is p, ink. Pink. Right. So INK, INK, INK. Sink, think, pink. So this all 3 words has again same sound, right? And here also, see some words, when we speak some words, at that time we do not make sound of some letters. कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी हम कोई स्पेलिंग बोलते हैं तो उसमें कोई वर्ड है ना, उसका साउंड हम नहीं बोलते हैं, राइट? तब क्या कहा जाता है कि वो वर्ड में उस लेटर का साउंड है वो साइलेंट है, मगर वो वर्ड लेटर होता है. जैसे W का साउंड क्या होता है? व, राइट? W का साउंड क्या होता है? व. बट इसका हम स्पेलिंग हम क्या बोलेंगे? वरिंकल नहीं बोलते हैं, इसका स्पेलिंग हम बोलते हैं रिंकल. मीन्स W is, we can say, silent, right? So the spelling is wrinkle. What we can say? It is wrinkle. Now here also, see, the spelling is WRIGGLE. This is wriggle. हम इसको वरीगल तो नहीं बोलते हैं, वो का तो W का तो साउंड ही नहीं आया, राइट? आपको ऐसा लगेगा कि W का क्या मतलब होगा, बट हियर वी कैन से W इज साइलेंट. कभी कभी, अगेन आई एम टेलिंग, समटाइम्स in some spellings the letter sound we are not doing, मतलब कि हम लेटर का जो साउंड है ना वो नहीं ले रहे हैं, राइट? तो उसको लेटर को हम क्या बोलेंगे कि उसका साउंड है वो साइलेंट है. जैसे यहाँ पे देखो WORRY, worry. So here we are speaking W sound, right? Here we are not using sound of W. फिर ये भी है, देखो WRITE, राइट? अब इसको हम वराइट तो नहीं बोलते हैं, इट इज
right. So we can say W is silent. Now here see worry, so W is here. See W sound is W, right? WORK, this is work. So here also we are speaking, and this is wonderful. Here also W sound is there, understand? Now see, when we read W in column 3, it has no sound. See, this is column 3, and when we read these words at that time, we were not using W sound, right? हमने use किया था no. This is wrinkle नहीं है, this is wrinkle. This is not wriggle, this is only wriggle. This is not right, this is only right. Again we can say W is silent. Now see here, look at the word. See this word TALK, right? So here I is silent. Now see, when we speak this word, it is what? Talk. TALK, talk. No, here also L is silent. We can say talk. What we can say? Talk, right? Now say the silent letter in the following words aloud. अब इसमें हमको silent letters find करने हैं. Now read this word with me. See, I tell you every time when I read in the video, at that time you also have to read with me. Understand? आपको भी मेरे साथ read करना है. So WALK, what is this? हम इसको क्या बोलेंगे? Walk. We will not speak walk. It is not walk. Here L is silent. यहाँ पे कौन सा word silent है? Sorry, कौन सा letter silent है? L. Understand? Now it is again, speak with me. MORE, more. What? MORE, more. यहाँ पे हमने किसका साउंड नहीं किया? E का, right? E का तो A साउंड होता है. E says A. तो हमने यहाँ पे क्या मोरे बोला? No, it is more. तो E is silent in this word. Now here see WRAP. This is rap. It is rap. So here we are not using W. यहाँ पे हमने wrap तो नहीं बोला, right? तो here W is silent, and here JOKE. अच्छा बताओ कि ये किसका स्पेलिंग है? Yes, joke, right? बट यहाँ पे हमने कौन सा लेटर को मिस कर दिया? E को. What is the sound of E? It is A. बट हम यहाँ पे जोके तो नहीं बोल रहे. We are speaking joke, right? So here L is silent, here E, here W, and here again E. So understand, in some spellings, some letters are silent. We do not use the sound of particular letter. These are called, we can say, silent sound, right? उसमें उसका sound जो होता है ना, वो silent होता है. Now here see, all the following words have an I sound that rhyme with my, right? कभी कभी क्या होता है कि I says E, but sometimes we use sound I that rhyme with my. Can you feel the letter and then say the words aloud? Now see here, SM then dash LE. So we have to write here I. तो SMI तो क्या हो जाएगा? स्माइल. तो देखो यहाँ पे I का साउंड क्या हुआ? माई. जैसे कि SMY हमने बोला, तो हमने इसको I से E, तो स्मी तो नहीं बोला, हमने क्या बोला? स्माइल. मतलब कि I और my, right? स्माइल. Now here also KITE, again क्या हो गया? काइट, right? हमने इसको के तो नहीं बोला. आई का साउंड अगर हम आई से ई बोलते हैं तो क ई की होना चाहिए, राइट? बट यहाँ पे तो हमने काई बोला, तो इसका हम क्या मीनिंग बोलेंगे? इसको हम कैसे बोलेंगे? काइट. अब यहाँ पे अगर हम आई लगाएंगे तो माइस, राइट? तो भी हो गया माई. अब लास्ट में क्या आएगा? अगेन LINE, लाइन. स्माइल, काइट, mice and line. So here we are using I sound, but the sound is again like rhyming word my and I, both are same. जैसे यहाँ पे हो गया smile, kite, mice and line. Understand?
So this is also very easy. Now see, it's fun time, riddle time. See here, which picture can you see? यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर दिख रहा है ऐसे, क्या लग रहा है आपको? ये क्या है? इमेजिन करो कि क्या है. See here eyes, and what is this? Let's see first question. First question तो पढ़ ले. See, which is the longest word in the world? कौन सा longest word, मतलब कि कौन सा शब्द सबसे लॉन्ग है पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में कौन सा शब्द लॉन्ग है? कैन यू इमेजिन? क्या आप इमेजिन कर सकते हो? अच्छा, आप 2 मिनट्स ले लो, पोज द वीडियो. आप वीडियो को पोज करके 2 मिनट सोचो कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा है. तो अगर आप बुक को ऐसे उल्टी करोगे ना तो आपको इसका आंसर भी दिखेगा. वो वर्ड है जो यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ हुआ है. देखो यहाँ पे 2 सर्कल्स एंड 1 बिग, ये क्या है? स्माइल, राइट. तो विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड? दिस इज स्माइल. अरे आप सोच रहे होंगे ना कि मैडम ने स्माइल क्यों बोला? स्माइल में तो ओनली SMILES, स्माइल्स, राइट. तो स्माइल्स में तो सिर्फ कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स. अब इससे बड़ा वर्ड तो एलिफेंट का है, वो तो उससे भी बड़ा होता है. बट आप यहाँ पे सोच सकते हो कि देखो यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो दोनों एस के बीच में MILE मतलब कि माइल लिखा हुआ है. अब आपको पता है माइल मीन्स हम डिस्टेंस जानने के लिए माइल यूज करते हैं, और माइल जो होता है ना वो किलोमीटर से भी बहुत बड़ा होता है, राइट. तो हुआ ना स्माइल सबसे बड़ा स्पेलिंग. अभी कोई स्पेलिंग कितना बड़ा होगा किलोमीटर जितना? नहीं, एक स्माइल ही है जिसमें माइल आ गया. इजी, इंटरेस्टिंग, मजा आया आपको, राइट. तो अभी आपको कोई पूछे विच इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, कौन सा लॉन्गेस्ट वर्ड है पूरे वर्ल्ड में, तो आप क्या बोलोगे? स्माइल्स. और अगर आपको कोई पूछे कि कौन सा वर्ड है तो आप उसका क्या आंसर बताओगे? ये, क्योंकि स्माइल्स में माइल होता है और माइल्स तो किलोमीटर से भी बिग होता है, राइट. सो स्माइल इज द लॉन्गेस्ट वर्ड इन द वर्ल्ड, राइट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. Now this is your textbook page number 42, and what is written? Let's write. Play the game with your partner. Now here again you have to play the game and it's really fun. So you can take help of your family member, you can take help of your mother, your brother, sister or your father also, right. First of all what you have to do? Close your eyes. क्या करना है आपको? आंखें बंद करनी है. Move your finger over the page while you sing. फिर आपको एक कुछ गाना गाना है और आंखें बंद करके ये गाना है, जैसे टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस, राइट. टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस. आपको ऐसा बोलना है आंखें बंद करके, और आपकी फिंगर है ना वो ऐसे पेज पे मूव करनी है, राइट. उसके बाद क्या करना है? When you finish reciting the poem, stop moving your finger. फिर आप जब भी ये वर्ड बोलना, मतलब आपका ये जो है वो फिनिश हो जाए ये सॉन्ग, तो आपको क्या करना है? आपके फिंगर भी मूव करनी, स्टॉप कर देनी है. उसके बाद ओपन योर आईज. उसके बाद आपको आंखें खोलनी है. यू सी विच लेटर यू स्टॉप. फिर आपको ये जो लेटर्स है ना उसको देखना है कि कौन से लेटर पे आप स्टॉप हुए हो. यूज द क्लू एंड सी नियर द लेटर क्लूज आर गिवन. यहाँ पे कुछ क्लू दिए हैं और लेटर्स दिए हैं. राइट द वर्ड बिगिनिंग विद द लेटर्स. फिर आपको वो वर्ड है ना वो लिखना है जो लेटर से स्टार्ट होता है क्लू को यूज करके. बट फर्स्ट लेटर तो यही आएगा. अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले देखो मैंने मेरी आंखें बंद रखी है, राइट. मेरी आंखें बंद है और मैं ऐसे पेज पे मूव कर रही हूँ. सी टिक टैक टो राउंड आई गो, इफ आई मिस आई विल टेक दिस. ओके, अब मैंने मेरी आंखें खोली है तो कौन सा लेटर पे पहुंची हूँ मैं? डी पे. डी, और डी से स्टार्ट करके मुझे क्लू भी मिला है, अ पेट यू लव. मतलब कि एक ऐसा पेट है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं और वो डी से स्टार्ट होता है. तो कौन सा पेट एनिमल है जिसको डी से स्टार्ट करते हैं हम, जिसका नाम? It's a dog, right? So my answer is right. Now
माई पार्टनर्स टर्न। अब क्या होगा कि मेरे पास तो अभी कोई पार्टनर नहीं है, राइट। आप घर पे ऐसे ट्राई करो और जो भी क्लू आए उसके रिलेटेड आपको स्पेलिंग्स बोलना है। आइदर यू कैन कीप योर फिंगर हियर, तो आप क्या करो क्यू से रिलेटेड, मतलब कि आप क्यू वाला कोई स्पेलिंग बोलो, और यहाँ पे भी ऐसा ही है। यू राइट दिस, यू राइट विद दिस। अगर पी आ गया तो यहाँ पे पी से स्टार्ट होता हुआ क्लू तो है आपके पास, यू राइट विद दिस, ऐसा कोई थिंग जिससे आप लिख सको, राइट। सो दिस इज योर गेम that you have to play with your partner, right, at home. And here see, it is form a clay club in groups. It is team time, means it is, we can say, group activity. Give your club a name. फिर आपको क्या करना है, हम पहले स्कूल में आते थे तो क्या करते थे, ग्रुप एक्टिविटीज करते थे, उसमें हम ग्रुप बनाते थे, फिर कुछ गेम खेलते थे, राइट। और ग्रुप का कुछ नाम भी होता था, जैसे हमारे मतलब स्पोर्ट्स होता है तो हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप का नाम होता है ना, कि ये रेड हाउस, येलो हाउस, तो एक टीम का, एक ग्रुप का एक नाम हुआ, राइट। तो ऐसा ही कोई नाम देना है। उसके बाद क्या करना है, टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले। आपने ये क्ले तो देखी होगी, हम क्ले से, आपको पता है हमने एक बार क्ले से गणपति बनाए थे स्कूल में, जब हमने बहुत सारी क्ले को कलेक्ट किया था और गणपति बनाए थे, और कोई कोई बच्चे ने तो बहुत सारे टॉयज भी बनाए थे, राइट। तो वैसी क्ले आपको यूज करके यहाँ पे कुछ बनाना है। टेक अ वेट स्लैब ऑफ क्ले। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके घर पे ऐसी क्ले अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट दोज हु हैव, जिसके घर पे अवेलेबल है तो वो लोग बना सकते हैं। यूज अ मैचस्टिक्स टू राइट द नेम ऑफ योर क्लब। फिर क्या करना है, आपको मैचस्टिक्स का यूज करके आपको नाम लिखना है, एंड ऑल द क्लब मेंबर्स ऑन इट, राइट। सभी क्लब मेंबर का नाम लिखना है। लेट द स्लैब ड्राई। फिर आपको उस स्लैब को ड्राई होने देना है, सूखना मतलब उसको सुखा देना है। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम। फिर आपको क्लासरूम में डिस्प्ले करना है, बट आप अभी क्या करो, अभी आप खुद अकेले ही बनाने वाले हो, तो यू कैन डू वन थिंग, यू जस्ट टेक स्लैब ऑफ क्ले, फिर आप उसको ऐसे अच्छे से उसको शेप बना दो, फिर आपका ही नाम आप मैचस्टिक्स के ऊपर उसको ऐसे स्टिक करो, राइट। फिर वो सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और फिर आप मुझे उसका फोटो क्लिक करके भेजना। इट इज नॉट कंपल्सरी, इफ इट इज अवेलेबल देन ओके। अगर आपके घर के आसपास अवेलेबल है तो ही, वरना नहीं, बाहर लेने जाने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले योर स्लैब्स इन द क्लासरूम। नाउ ट्राई मेकिंग डिफरेंट थिंग्स विथ क्ले, लाइक बर्ड, सन, फ्लावर एक्सेट्रा। और कुछ अलग थिंग्स भी बनाओ, जैसे यहाँ पे सन बनाया है, फ्लावर बनाया है, देन एक बर्ड बनाया है। यू कैन मेक अदर थिंग्स ऑल्सो, राइट। आप अलग अलग थिंग्स बनाओ, चाहे आप लैंप बनाओ, राइट, या गणपति बनाओ। गणपति तो हमने बहुत बार बनाए हैं, इस बार कुछ न्यू बनाओ, राइट। तो आप ऐसे करो ना। अनदर सी फन टाइम, इट इज ऑल्सो वन क्ले एक्टिविटी, वी कैन से क्ले मॉडलिंग। हैव फन विथ क्ले, राइट। क्ले से खेलना तो सबको पसंद है। जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं भी छोटी थी, तब मैं भी ये क्ले से बहुत खेलती थी और डिफरेंट डिफरेंट टॉयज बनाती थी। सो क्या करना है, टेक अ क्ले बॉल। अब क्ले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्ले बॉल लेना है। यूज अ रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मीन्स ऐसा बैलन, आपको एक बैलन लेना है, एंड रोल द क्ले, और फिर क्ले को ऐसे रोल करनी है आउट फ्लैट, और ऐसे रोटी जैसी। मेक अ क्ले पैनकेक। आपको क्ले पैनकेक बनाना है, राउंड लाइक रोटी और इडली, जैसे रोटी और इडली जैसा राउंड बनाना है, राइट। और आपसे पूरा राउंड ना हो तो आप क्या करो, जैसे तैसे उसको फ्लैट कर दो, फिर कोई बाउल ले लो या कोई प्लेट ले लो, उसके ऊपर ऐसे रख दो, फिर उसको कट कर दो तो हो जाएगा राउंड, इजी। नाउ विद द हेल्प ऑफ अ मैचस्टिक्स ड्रॉ अ सर्कल और यूज अ बॉल। जैसे कि मैचस्टिक्स के साथ से हमने ऐसे सर्कल किया, या तो मैंने अभी बोला कि उसको एक बाउल ले लो, फिर उसको कट करो, दैट वे यू कैन डू सर्कल आउट ऑफ द रोल्ड क्ले, राइट। फिर रोल्ड क्ले को हमको क्या करना है, एक सर्कल जैसा हो जाएगा। यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आइस।
nose, ears and smiley और a sad face। अब वो आपकी चॉइस है, जो एक्स्ट्रा बने तो आप उससे क्या करो, राउंड राउंड करके उसकी आईज बना दो, फिर उसके लिप्स बना दो ऐसे। अगर आपको स्माइली बनाना है सो दैट वे यू कैन डू। इफ यू डोंट वांट टू मेक स्माइली, इफ यू वांट टू मेक सैड फेस, सो डू लाइक दिस। इट इज योर चॉइस, आपको जैसा बनाना है वैसा आप बनाओ। फिर अगर आपको गर्ल बनानी है तो उसके ऐसे सर्कल सर्कल क्ले के करके उसकी ऐसे 2 चोटियां बना दो, राइट, तो वो भी बहुत अच्छा बनेगा। यूज द एक्स्ट्रा क्ले टू मेक आईज, नोज एंड ईयर्स। नाउ ऑल्सो ट्राई मेकिंग हेयर, जैसे मैंने बोला कि उसके हेयर भी बनाओ, राइट। और कुछ अलग फेसेस अगर आपको बनाने हैं, जैसे आपको एंग्री फेस भी बनाना आता है तो आप वो भी बनाओ, राइट। बट अगेन आई एम टेलिंग, इट इज नॉट कंपल्सरी। अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो ही बनाओ, वरना आप क्या करो, उसका दूसरा भी है, राइट। आप वो डो जो होता है, जो जिससे मम्मी रोटियां बनाती है, आप उससे शेप बना सकते हो, राइट। क्ले जैसा आप डो लेके पहले क्या करो, व्हीट फ्लोर लो, फिर उसमें थोड़ा वाटर डाल के क्ले जैसा बनाओ और फिर उसके शेप्स बना सकते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट ऑप्शन। तो अगर क्ले नहीं है तो हम डो से बनाएंगे, राइट। स्माइली तो डो से बन ही सकता है, तो आप उससे बनाओगे, राइट। बट ये भी इफ योर पेरेंट्स, इफ योर मदर इज हेल्पिंग यू, एट दैट टाइम यू कैन मेक, ओके। सो इन द नेक्स्ट पेज 44, पेज नंबर 44 in your textbook, 1, what is given, what is this? It's again a rhymes। ये एक rhymes है। जब हम छोटे थे ना, जब आप छोटे थे तब आपने ये बहुत बार बोली होगी। सी क्या है ये, if you are happy and you know it, if you are happy and you know it, clap your hands, right। आपको याद है, हम इसको गाना भी गाते थे ऐसे, if you're happy and you know it, clap your hands। If you're happy and you know it, clap your hands, right। If you are happy and you know it and you really want to show it, if you are happy and you know it, clap your hands, right। So it is very interesting, but you have to read and you have to speak। Now what you have to do, repeat the rhyme with the following action also। अब आपको क्या करना है, क्लैप। क्लैप तो आपको पता ही है ना, हम ऐसे क्लैप करते हैं, राइट। सो यू हैव टू क्लैप योर हैंड्स एंड स्पीक इट लाउडली। आपको क्या करना है, लाउडली बोलना है, और इसको आप लर्न भी करना है। बट ये तो आप सबको आता है ये ऑलरेडी, बट फिर भी आप इसको लर्न करो। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें क्या करना है, देखो, इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, नोड योर हेड। अब नोड योर हेड का मतलब क्या होता है, ऐसे सर हिलाना। जैसे आप कभी हाँ बोलते हो तो आपका सर हिलता है, कभी ना बोलते हो तब भी आपका सर हिलता है। तो हम ऐसे कैसे भी हमारा सर हिलाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नोडिंग। नोड योर हेड। जब हम अपने हेड को मूव करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, नोड योर हेड, ओके। तो ऐसे सर हिलाना। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। आप देख रहे हो, स्टैम्प योर फीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप बच्चे देख रहे हैं, वो अपने लेग्स को, मतलब कि अपने फीट को ऐसे स्टैम्प कर रहे हैं, मतलब कि वो जमीन पे से ऐसे आवाज आती है हम जब भी चलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्टैम्प, राइट। सो स्टैम्प योर फीट। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा हा। तो यहाँ पे आपका कुछ वो जो वर्ड है वो चेंज हो गया। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, स्टैम्प योर फीट। उसके बाद आपके फुट की आवाज करनी है, थप थप थप, राइट, फुट से। इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, से हा हा हा। तभी आपको क्या बोलना है, हा हा बोलना है। एंड इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, डू ऑल फॉर, क्लैप क्लैप, नोड नोड, स्टैम्प स्टैम्प। फिर आपको तीनों साथ में करना है, क्लैप क्लैप, देन नोड नोड एंड स्टैम्प स्टैम्प, राइट। ये भी आप कर सकते हो। सो दिस इज योर राइम एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग राइम। इसको आप बोलो एंड रिपीट करो अगेन एंड अगेन एंड लर्न बाय हार्ट। और आपको क्या करना है, बाय हार्ट ये लर्न करना है, ओके। थैंक यू।